Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Muhammad Arshid Yaqub, and I am assistant professor in Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacy Practice, and as well as the Pharmacognosy from the university. I am also a visiting faculty member of in Ikra University, and most of my work experience as a clinical pharmacy or hospital pharmacy. Starting from my job in Holy Family Hospital, and then I worked in Karachi Adventist Hospital also. That's called a 7-day hospital. After my completion of MPhil degree, I went to Kingdom of Saudi Arabia in Ministry of Health, one of the hospital, and then worked in most advanced hospital there and clinical system, that is John Hopkins Aramco Healthcare. So this time actually I am taking your course of hospital pharmacy, and there is form 601, and inshallah I will try to explain and share my all experiences of hospital pharmacy with you. Unfortunately, due to the COVID-19 corona, we are not able to do our live physical classes in university, but hope inshallah our all educational institute and all lockdown things will open soon inshallah. Until this, our aim to not lose your education and your time. I am starting my first lecture of hospital pharmacy there, and I will try to convey my practical knowledge to you. And inshallah, you will ask any question and any doubt you can ask. And time to time, I will also provide you the literature about the hospital pharmacy, as well as some books which are very important for hospital pharmacy point of view. So just I am starting about the hospital pharmacy. I just show you the one of the slideshow and the PP PowerPoint presentation. In PowerPoint presentation, just first of all, I just want to explain you the definition of hospital pharmacy, then how to the pharmacist, that is hospital pharmacist or clinical pharmacist, work in a hospital. That is my first topic. So before starting this topic, I just want to teach you one of the things about the hospital, the concept of the hospital. So hospital pharmacies can usually be found within the premises of hospital. Means the hospital का फार्मेसी जो होगी वो लाजमी एक तो पहली बात ये होगी कि फार्मेसी जो हॉस्पिटल के अंदर होगी, यानी कि हॉस्पिटल की तरह फार्मेसी बनाई हुई कहीं वो सैटेलाइट फार्मेसी को खिला सकती है, सैटेलाइट फार्मेसी, लेकिन वो हॉस्पिटल फार्मेसी पूरा सिस्टम नहीं खिलाएगा. इसके लिए ज़रूरी है कि और सेंटर पार्ट में होना चाहिए. और हॉस्पिटल फार्मेसी यूजुअली स्टॉक अ लार्ज रेंज ऑफ मेडिकेशंस, ये भी ज़रूरी चीज़ है, इंक्लूडिंग मोर स्पेशलाइज्ड and investigational medications. I will explain you the both type of the medication later inshallah. Then would be feasible in the community setting. So okay, so basic concept अगर आप हॉस्पिटल का समझें तो ये इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और ये आपका बेस इसमें आप बनेगी कि हॉस्पिटल फार्मेसी होता क्या. Hospital pharmacy typically provide medication for the hospitalized patient, but nowadays the OPD pharmacy also running. The OPD pharmacy में क्या होता है कि वो आउट पेशेंट फार्मेसी जो कि एडमिट नहीं होते जो कि आउट पेशेंट फार्मेसी कहलाती है. तो आउट पेशेंट फार्मेसी का एक टॉपिक हम अलग रखेंगे, उसके बारे में बताएंगे, और फिर उसको डिटेल फार्मेसी से कैसे उसका लिंक किया जाएगा वो हम चीज़ें आपको बताएंगे. लेकिन इन पेशेंट फार्मेसी में पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल के अंदर, उसको मेडिकेशन कैसे प्रोवाइड की जाएंगी वो हम देखेंगे. लेकिन आजकल जो है रिटेल फार्मेसी और जो है, और इसमें ज़रा थोड़ा फ़र्क करना पड़ेगा जो आउट पेशेंट फार्मेसी में. तो
क्लासिफिकेशन अगर हम देखा जाए कि फार्मेसी की कौन कौन सी होंगी, तो आप देखेंगे कि उसमें इंडोर फार्मेसी जैसे बताया, जैसे इन पेशेंट जो है फार्मेसी कहलाएगी, आउट पेशेंट फार्मेसी है, रिटेल फार्मेसी है, और होलसेल फार्मेसी है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, और मैनी मोर अदर हैं जो कि हम आपको बताएंगे कौन कौन सी फार्मेसी इसमें आपके पास होंगी। और इसके लिए हम एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ हम देखें तो हम फार्मेसी डिपार्टमेंट में हम कह सकते हैं कि एक तो लोकेटेड होगा, सेंट्रल पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल होगा, जहाँ पर इजी कम्युनिकेशन विद अदर डिपार्टमेंट के साथ अगर इजीली कम्युनिकेशन होगा तो जाहिर है वो अच्छी तरह फार्मेसी रन कर सकेगी और एक दूसरे कांटेक्ट में रहेंगे और ज़ाहिर है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस तरह। और इसके लिए ज़ाहिर है उसमें बहुत सी चीज़ें होंगी, तो हम देखेंगे कि अगर फार्मेसी अगर देख रहे हैं कि फार्मेसी कहाँ के क्या है, फार्मेसी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, तो ये कॉमन मेडिकेशन इसमें होनी ज़रूरी है, नारकोटिक की होना ज़रूरी है, पॉइजन के लिए जो है एंटीडोट का होना लाजिम होगा। और अगर अच्छा हॉस्पिटल है तो उसमें प्रिपरेशन हो रही होगी जिसमें नॉन स्टाइल प्रिपरेशन है, स्ट्राइल प्रिपरेशन में ज़ाहिर है आईवी सॉल्यूशंस बन रहे होंगे, टीपीएन बन रहा होगा, नॉन स्ट्राइल में बल्क में एनाल्जेसिक बाम है, कार्बोनेटेड मिक्सचर्स हैं और कुछ ऑइंटमेंट्स हैं बन रहे होंगे। अब स्ट्राइल चीज़ें बन रही है तो उसकी ज़ाहिर स्टरलाइजेशन के लिए भी कोई प्रोसेस करने के लिए भी कोई एरिया होना चाहिए, एजुकेशन के लिए एक एरिया होना चाहिए। तो ये हम आपको अभी तो इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, लेकिन वन बाय वन हम आपको सब एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। अगली स्लाइड हम शुरू करेंगे आपको पावर पॉइंट का, वो आप देखिएगा हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे, वो डेफिनेशन फार्मेसी की क्या होती है वो आप देखिएगा। अच्छा, फिर आप देखिएगा कि स्लाइड शो में अगला हम जाते हैं, फिर हम स्लाइड पहले आपको दिखाते हैं, फिर हम उसकी डेफिनेशन बताते हैं कि क्या डेफिनेशन है हॉस्पिटल फार्मेसी की इंशाल्लाह। जो अगर नहीं है तो अब इस लेक्चर को आप रिपीट करिए, नहीं तो आप कांटेक्ट करने की कोशिश करिएगा कि हम आपको दोबारा ये एक्सप्लेन कर सकें। और ये तो हम बेसिक चीज़ ही बता रहे हैं, आप बाकी एक्सप्लेन हम टाइम टू टाइम आपको करते रहेंगे और रिवीजन भी हम करते रहेंगे, कोई मसला नहीं है इसका। जी, ये स्लाइड में आप देखिए इसमें एक डेफिनेशन लिखी हुई है। पहले सबसे पहले मैं इस डेफिनेशन को आपके लिए रीड करता हूँ। ये डिफ़ाइन है, अगर मैं पूछूँ कि डिफ़ाइन हॉस्पिटल फार्मेसी, तो ये डेफिनेशन आप लिखनी होगी, लेकिन इस डेफिनेशन को समझने के लिए इसमें कुछ जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो आपको आनी चाहिए, और उसी सीक्वेंस में अगर आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा भी और भी डेफिनेशन है, अब दूसरी डेफिनेशन में आपको बताऊँगा, लेकिन अभी डेफिनेशन को पहले मैं रीड करता हूँ, फिर आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर दोबारा रीड करूँगा, फिर आप देखिएगा पहली दफ़ा रीड करने और सेकंड बार रीड करने में आपको क्या समझ में आता है। तो देखिए, हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ हेल्थ केयर सर्विस विच कंप्राइजेस द आर्ट, practice and the professional of choosing, preparation, storing, compounding and dispensing medicines and medical devices, advising healthcare professionals and patients on their safe, effective and efficient use। देखिए, सबसे पहले हॉस्पिटल फार्मेसी जो होगी वो हमारा ज़ाहिर हेल्थ केयर सिस्टम का एक बेस है, एक पिलर है, और एक वो सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए एक हमारा हेल्थ केयर सर्विस को एक तरह का बेस किया जाए। तो हम स्टार्टिंग जो हमारी जो डेफिनेशन आप देखिएगा इज़ द हेल्थ केयर सर्विसेज हो गई, ये तो कॉमन चीज़ हो गई। हेल्थ केयर सर्विस तो नर्सिंग भी है और जो है डॉक्टर्स भी हैं और फिजियोथेरेपिस्ट भी है, लैब भी है, लेकिन ये हमारा हेल्थ केयर का एक सर्विस का एक मेन पिलर होता है विच कंप्राइजेस द आर्ट। अच्छा, आर्ट की जो देंगे वर्ड अक्सर डेफिनेशंस में यूज़ किया जाता है। तो आर्ट क्या चीज़ होती है? आर्ट जैसे आर्ट होता है, साइंस होती है, तो आर्ट ये नहीं कि आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हो, आर्ट एक तरह की टेक्निक होती है। ART आर्ट इज़ जनरली अंडरस्टूड एज एनी एक्टिविटी or product done by the people, by the pharmacist here, something that express an idea, an emotion, or more generally a world view. It is a component of culture reflecting economic,
and social designing and subtracts. So art एक तरह का किसी को चीज़ को बताने का एक ज़रिया होता है। तो इसलिए इस डेफिनेशन में आप देखिए कि बताया गया है, फार्मेसी की डेफिनेशन में भी ये बताया गया है, जब आपने फार्मेसी की डेफिनेशन पढ़ी होगी। सो ये आप बताएंगे विच comprises the art, practice and profession of choosing preparation। देखिए एक तो प्रैक्टिस होगी, ज़ाहिर ये नहीं है कि थियोरेटिकल हम करेंगे और हॉस्पिटल फार्मेसी ख़त्म, नहीं। हॉस्पिटल फार्मेसी में जो हो रहा है वो प्रैक्टिकल हो रहा है, वो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और यही वजह है कि लैब इसकी हॉस्पिटल फार्मेसी की कुछ लैब्स भी हैं जो कि 4th ईयर और फिर फाइनल ईयर में आपको जो कुछ हॉस्पिटल्स विज़िट कराएंगे, तो उस विज़िट कराने में आप देखेंगे कि वहाँ पे प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, फार्मेसी ना सिर्फ फार्मेसी में बल्कि पूरे हॉस्पिटल में। तो द आर्ट ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल ऑफ चूजिंग, यानी हमने यहाँ पर चॉइस होगा, हम क्या क्या चूज़, हमारे पास क्या क्या अख्तियारात होंगे, हम क्या क्या काम वहाँ कर सकते हैं, क्या क्या प्रिपेयर करेंगे। अब प्रिपेयर में मैंने बताया था कि जब ज़्यादा प्रिपरेशन देखी जा रही है तो स्ट्राइल चीज़ें भी बनाई जा रही हैं, नॉन स्ट्राइल मेडिकेशन भी बनाई जाएंगे, वो है। अच्छा, एक जगह स्टोर बनाया है, बड़ा स्टोर है जिसमें कि स्टोर करके मेडिकेशन स्टोर की जा रही हैं, और एक जगह है जहाँ से डिस्पेंस की जा रही हैं। डिस्पेंस भी दो तरह का हो गया, आई पेशेंट इन पेशेंट को की जा रही है, आउट पेशेंट को की जा रही है, तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो आप ये देखिए डिस्पेंसिंग दिया हुआ है एंड मेडिसिन एंड मेडिकल डिवाइसेस। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर मेडिसिन की बात की जाए, तो फार्मेसिस्ट के अंडर में जो डिवाइस होते हैं, मेडिकल डिवाइसेस, बीपी ऑपरेटर्स हो गया, शुगर को ग्लूकोमीटर्स होते हैं, और भी बहुत से ऑपरेटर्स होते हैं, तो उसको भी ऑपरेट करना, उसको भी वो हमारा और या उसको डिस्पेंस करना वो भी हमारा ही काम होगा, और या फार्मेसिस्ट हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट का काम होगा। और साथ साथ एडवाइजिंग हेल्थ केयर प्रोफेशन, यानी हम एडवाइस करेंगे हेल्थ केयर प्रोफेशन, यानी डॉक्टर्स को भी बहुत एडवाइस करते हैं, पेशेंट्स को ख़ास तौर पर एडवाइस करते हैं, नर्सिंग जो डोज कैलकुलेशंस हैं उनको एडवाइस करते हैं, और यानी हमारा इन सब से ताल्लुक़ होगा एडवाइस करने का। और एक हमारा एक अलग इदारा भी एक जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर बना होता है, वहाँ से भी एडवाइस की जाती। तो ये टाइम टू टाइम एडवाइस करेंगे, एडवाइस ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट्स on their safe, effective and efficient use of medications, यानी मेडिकेशन को सेफ कैसे रखा जाए, उसके साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो और उसका असर ज़्यादा से ज़्यादा हो, इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। सबसे मेन काम हमारा हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट का या क्लिनिकल फार्मेसिस्ट का यही होगा। तो इंशाल्लाह सेकंड डेफिनेशन में बताता हूँ। देखिए ये सेकंड डेफिनेशन, इसको मैंने अदर डेफिनेशन का करके लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट। ज़ाहिर एक हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट है, और अगर एक डिपार्टमेंट नहीं होता कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी फार्मेसी को चला रही होती है, तो हम इसको एक हॉस्पिटल फार्मेसी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, साथ साथ एक डिपार्टमेंट भी हम उसको कह सकते हैं। और द हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट है, जैसा कि एक डिपार्टमेंट है जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है एक्सरे डिपार्टमेंट, इसी तरह एक फार्मेसी एक डिपार्टमेंट है पूरा, और इस डिपार्टमेंट के मज़ीद हिस्से होंगे, ऊपर मज़ीद पार्ट्स होंगे। तो ये हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट है ऑफ द हॉस्पिटल टू मैनेज, और वहाँ पे क्या मैनेज किया जाएगा, ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप इसको देखिएगा और वन बाय वन इसको समझिएगा कि वहाँ पे जो है ऐसी चीज़ें की जाएंगी जो कि अरेंज की जाएंगी, प्रोक्योरमेंट होगी, स्टोरेज होगी, प्रिजर्वेशन होगी, पैकेजिंग भी वहाँ हो सकती है। आप पैकेजिंग ये नहीं है इंडस्ट्री की तरह होगी, वहाँ पे पैकेजिंग जो है, आप कोई चीज़ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी भी पैकेजिंग हो सकती है, स्टरलाइजेशन है तो उसकी भी पैकेजिंग हो सकती है, कंपाउंडिंग जो कि जो हम जैसे एनालिसिस बाम बना रहे हैं, दूसरी चीज़ें बना रहे हैं, उसकी कंपाउंडिंग भी होती है, कंपाउंडिंग प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग। अच्छा, डिस्पेंसिंग क्या चीज़ होती है, मेडिसिन को इन पेशेंट में या आउट पेशेंट में हम जो देते हैं, और जिस तरह हम पेशेंट्स को किस तरह जो ट्रांसफ़र करते हैं मेडिकेशंस, वो तरीके का पूरा तरीका डिस्पेंसिंग कहलाएगा, चाहे वो इन पेशेंट हो चाहे आउट पेशेंट हो। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन्स इन द हॉस्पिटल को भी हम पूरे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और साथ साथ मैं तो उसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ कि जब हम परचेज़ करते हैं तो वो भी हॉस्पिटल में आ जाता है कि आज परचेज़ डिपार्टमेंट अलग होता है, बाज़ में फार्मासिस्ट ही परचेज़ करता है मेडिकेशंस को। तो ये तमाम चीज़ें
ये फार्मेसी हॉस्पिटल फार्मेसी की कंट्रोल में आ जाए। अभी मैं आपको एक हेडिंग जो कि हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने इसी स्लाइड शो में दिया है आपको, वो रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल। ये मेन एक टॉपिक है कि फार्मासिस्ट का सबसे पहले यही बताया जाए कि रोल क्या होगा हॉस्पिटल में। कुछ पॉइंट्स मैंने बताया, वो पॉइंट को आप याद भी करिएगा, उसको समझिएगा भी। और वो क्या है, जैसे 3 पॉइंट इस स्लाइड में है, अगली में 3 पॉइंट अलग हैं, उसका तमाम मिला के कुछ पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स को 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो फार्मासिस्ट के वैसे बहुत सारे रोल हैं, तो उसमें एक रोल ये भी है कि जो फार्मासिस्ट है बहुत एक्टिव रोल, हेल्थ केयर प्रोफेशनल सबसे ज़्यादा एक्टिव रोल उसका होगा। वही जो है मेडिसिन का ताल्लुक ज़ाहिर उससे ही हो रहा है, तो मेडिसिन नहीं होंगी तो पेशेंट का हेल्थ केयर ही नहीं हो सकता। तो इसलिए फर्स्ट पोर्ट ऑफ द कॉल फॉर एडवाइस भी यही होगा। सिर्फ ना सिर्फ मेडिकेशन दे रहा है बल्कि उसको एडवाइस भी दे रहा है, उसको डोज भी बता रहा है पेशेंट को, और डॉक्टर्स को भी बता रहा है। तो ये सबसे पहले एक्टिव रोल जो है, सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया। और सेकंड ये हो गया कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट डिस्पेंस मेडिसिन एंड प्रोवाइड एडवाइस एंड इंफॉर्मेशन टू मेडिकल एंड नर्सिंग स्टाफ ऑन देयर यूज़। देखिए फर्स्ट से इसका ताल्लुक ये पहले में एक्टिव रोल का बताया गया कि वो है फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल फॉर एडवाइस है, और सेकंड में ये बता दिया गया है पॉइंट में कि ज़्यादा डिस्पेंस मेडिकेशन करेगा और हमारे एडवाइस भी देंगे, तो उनको इन्फॉर्मेशन भी देंगे। तो ये दो रुको एक जैसे ही है, लेकिन दो में ज़्यादा थोड़ा फ़र्क ये है कि इसमें एक में मेडिकेशन का बताया और एक में सिर्फ की रोल बताया गया है उसका। थर्ड ये है कि फार्मासिस्ट डिस्पेंस ड्रग प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू पेशेंट्स अबाउट मेडिकेशन एंड देयर यूजेस। देखिए पहले ना डिस्पेंस करेगा, मेडिकेशन को डिस्पेंस करेगा, चाहे ओपीडी में है तो उसके डिस्पेंस करने का अलग तरीका होगा, और इसमें हम पेशेंट्स को डायरेक्ट हम टीच कर नहीं करेंगे। उस पेशेंट को जो ज़ाहिर एडमिट है उसको तो मेडिकेशन दी जा रही है नर्स के ज़रिए या डॉक्टर्स के ज़रिए, तो उसको तो हम मेडिकेशन दे देंगे और प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन नर्सिस या डॉक्टर्स को। लेकिन जो ओपीडी है उनको जो है हम प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन करेंगे, बास को प्रोवाइड करते हैं, बास को ऑन डिमांड जो है अगर पेशेंट चाहता है कि उसको हम प्रोवाइड करें तो करते हैं, वरना ज़रूरत नहीं होती बास बात, तो हम ज़रूरत भी नहीं है कि हर मेडिकेशन की डिस्पेंस में उसके इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करें। तो वो लेकिन हम इंफॉर्मेशन भी देंगे पेशेंट्स को, और उसका यूज़ भी, मेन चीज़ तो यूज़ का है कि हम किस तरह यूज़ किया जाएगा, खाने से पहले देना है, खाने के बाद देना है, कितने 8 आवरली देनी है, या कौन सी मेडिकेशन देनी है, कौन सी नहीं देनी, ये सारी बातें हम उसमें उसको बताते रहेंगे। तो मेडिकेशंस को का एक ही रोल इसमें आ जाता है, डिस्पेंसिंग में आ जाता है। जी, रोल ऑफ फार्मासिस्ट चल रहे हैं, सेकंड स्लाइड में भी कंटिन्यू चला रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि कंपाउंड एंड डिस्पेंस मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर्स एंड डेंटिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशन, कैलकुलेटिंग, वेइंग, मेजरिंग एंड मिक्सिंग इंग्रेडिएंट्स। तो जो कुछ जो डॉक्टर्स वगैरह जो है वो अगर प्रिस्क्राइब करे कोई मेडिकेशन, तो मेडिकेशन जो डिस्पेंस का पहले हमने बताया था, लेकिन अभी क्या है कंपाउंडिंग में आईवी कंपाउंड जो है स्टराइलेशन प्रिपरेशन या नॉन स्टराइल जो कंपाउंडिंग है, उसमें ज़ाहिर है हम कैलकुलेशन, वेट कैलकुलेशन होगी, इंग्रेडिएंट्स को पता होना चाहिए कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं और उसको किस तरह मिक्स करेंगे, या कोई ऑइंटमेंट बना रहे हैं उसको भी मिक्सिंग को भी जो है हम देख सकते हैं। लेकिन वो गाइडेंस जो है उसके साथ जो हमें जो फिजिशियन है वो हमारी उस तरह गाइड भी करेगा कि किस तरह का वो चाह रहा है, उसी तरह से हम प्रिपरेशन करेंगे। एंड रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन से मुराद ये है कि अगर मोस्टली जो प्रिस्क्रिप्शन आ रहे होते हैं डॉक्टर से, उसमें बहुत सी गलतियाँ होती हैं। जो ओपीडी फार्मेसी कर रहा होता है वो देखता है, जो अंदाज़ा लगाता है कि उसमें मेडिकेशन क्या क्या दी जा रही हैं, कभी बात होती कम्बिनेशन सही नहीं होता, कभी डोजेज सही नहीं होती, कभी जो है एक्स्ट्रा मेडिकेशंस को लिखी जाती है, कभी डिस्कंटिन्यू मेडिकेशन भी साथ साथ लिख दी जाती है। तो बहुत सी गलतियाँ, ये मैं एक टॉपिक अलग रखूँगा जिसमें कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं प्रिस्क्रिप्शंस में वो हम बताएंगे। प्रिस्क्रिप्शन एरर कहते हैं इसको। तो प्रिस्क्रिप्शन एरर्स में क्या क्या एरर आ रहे हैं वो हम आपको एक अलग टॉपिक बताएंगे, अलग लेक्चर रखेंगे उसके लिए। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि रिव्यू प्रिस्क्रिप्शंस ये फार्मासिस्ट का अहम काम है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल फार्मेसी। So from the doctor to ensure the accuracy and एक्यूरेसी के लिए, यानी कि ज़ाहिर रिव्यू होगा तो एक्यूरेसी पता चलेगी, वरना गलतियाँ आगे चली जाएंगी और पेशेंट के लिए नुकसानदेह।
तो इसलिए रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन जो एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है, और इसमें सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो अगला पॉइंट ये कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस अबाउट ड्रग्स, देयर साइड इफ़ेक्ट्स एंड करेक्ट डोजेज एंड प्रॉपर स्टोरेज। तो एक मैंने बताया, जैसे कि पहले भी बताया, कि एक एरिया बनाया जाता है इसको कि ड्रग इंफॉर्मेशन एरिया जो है जहाँ पे एक फार्मासिस्ट के पास बहुत अच्छा सिस्टम होता है, जो कंप्यूटर का, इंटरनेट का, और साथ साथ वहाँ अच्छी बुक्स होती हैं, और जिससे और टेलीफोन होगा वहाँ, मोबाइल्स होंगे जिसके ज़रिए के हॉस्पिटल के कोई डॉक्टर्स, नर्स या स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, इवन पास बात के पेशेंट्स को भी एक्सेस दिया जाता है कि वो कॉल करके अपनी इन्फॉर्मेशन हासिल जो करना चाहें कर सकते हैं। तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइसेस अबाउट द ड्रग्स, उसकी साइड इफ़ेक्ट्स और डोजेज वगैरह की कोई मालूम करना चाह रहे हो तो वो मालूम करते हैं। एंड और दूसरी बात ये है कि और कुछ कीप सच अ फार्मेसी files, patient profiles, and some of the files and inventories, registers, and poisons and narcotic control, drugs information, ये सारी की सारी की फाइल्स और रिकॉर्ड्स हमारे कंप्यूटर में भी होता है, हमारे पास फाइल हार्ड कॉपीज़ भी होती है। और आजकल एक हॉस्पिटल के अंदर एक एरिया बना दिया गया जिसको मेडिकल रिकॉर्ड भी करते हैं, वहाँ भी हमने कुछ पेशेंट्स की रिकॉर्ड को मुंतकिल कर दिया जाता है। लेकिन फार्मेसिस्ट के पास भी इसका एक्सेस होता है कि वो उसको देख भी सकता है, और फिज़िकली भी जिसके पास चीज़ें होती हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल। प्लान, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन प्रोसीजर्स। ये मैंने जो बोल्ड कर दिया या अंडरलाइन कर दिया है, तो वो मेन उस पॉइंट का मेन जो है कीवर्ड्स होते हैं, वो आप उसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। प्लान, इम्प्लीमेंट और maintain procedures for mixing, packaging and labeling pharmaceuticals according to policy and legal requirement to ensure quality, security and proper disposal. So ये जो है फार्मासिस्ट, ये इन चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे पॉलिसी हो गई हैं, लीगल पॉलिसीज़ हो गई हैं, और कुछ डिस्पोजेबल्स के बारे में इंश्योर करना है, कोई सिक्योरिटी के बारे में, या मिक्सिंग है या पैकेजिंग है। तो इस सारे जितने भी प्रोसीजर्स हो रहे हैं, तो उन सब के प्लान बनाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, उसको मेंटेन करेगा उन प्रोसीजर को। देखिए 3 स्टेप्स होते हैं हमेशा हर चीज़ के। किसी चीज़ को प्लान किया जाता है तो ज़ाहिर पहले सबसे पहले प्लान बनाया जाएगा। प्लान सिर्फ कागजी प्लान तो नहीं होना चाहिए जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो प्लान फिर इम्प्लीमेंट, अच्छा इम्प्लीमेंट होकर भी छोड़ नहीं देना, इम्प्लीमेंट होकर तो फिर नहीं, इम्प्लीमेंट होकर चलाना है आगे तक, मेंटेन करना है उस चीज़ को। तो 3 चीज़ें हर चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ज़रूरी नहीं कि फार्मेसिस्ट कोई भी चीज़ों के कोई आप काम करना चाह रहे हो, ये 3 चीज़ें बहुत ही अहम है। ये फार्मेसिस्ट के लिए भी ये चीज़ें बहुत अहम होती है कि फार्मेसी को रन करने के लिए। तो प्लान, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन। नेक्स्ट पॉइंट ये कि एक्सेस द आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ एंड प्योरिटी ऑफ द मेडिकेशंस। यानी ये नहीं कि मेडिकेशन दे रहे हैं बस ख़त्म, नहीं, मेडिकेशन कैसी है, ये प्योरिटी इसकी कैसी है, आइडेंटिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, और वो जेन्युइन है कि नहीं है, ये तमाम चीज़ें। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट की होगी कि ये इसको देखे, मेक श्योर करे कि चीज़ें जो हैं वो जेन्युइन हैं कि नहीं है। तो ये चीज़ें भी काउंट करती हैं। ये नहीं कि सिर्फ डिस्पेंस कर दिया, आया और डिस्पेंस कर दिया, फार्मासिस्ट का काम नहीं। ये तो कोई डिस्पेंसर भी कर रहा है बाहर मेडिकल स्टोर में। तो फार्मासिस्ट का और जो डिस्पेंसर है उसमें फ़र्क होना चाहिए। वर्क विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू प्लान, मॉनिटर, रिव्यू और एवेलुएट द क्वालिटी और इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग। ये भी उससे मिलता जुलता एक पॉइंट हो गया कि, लेकिन इसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी शामिल कर लिया गया कि उनके साथ मिल के करना है। ये नहीं कि खुद फार्मासिस्ट अकेला करे। कोई अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है नर्सिंग स्टेशन में आ रहा है, तो उन्हें वहाँ जाके देखेंगे, नर्सेस से आप जो हेड होगा उससे कांटेक्ट करके फिर वहाँ देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है मेडिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो सारे उनको जब तक एतमाद में नहीं लेंगे तो ये हम बता नहीं सकते कि हम मसले को सॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरह डॉक्टर्स को और हेल्थ केयर के जो प्रोफेशंस हैं उनको हमने एतमाद में लेके और उनके साथ वर्क करेंगे, वर्क विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फिर उनके साथ प्लान करेंगे, मॉनिटर करेंगे, रिव्यू करेंगे सारे सिस्टम को और एवेल्यूएट करेंगे जो पेशेंट के लिए और हॉस्पिटल के लिए फ़ायदा हो जिससे।
जी नेक्स्ट स्लाइड। ऑर्डर एंड परचेज, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बोला था कि ये फार्मासिस्ट का कि ये भी काम होता है। बाज़ हॉस्पिटल्स में परचेजिंग डिपार्टमेंट एक अलग बना दिया जाता है, लेकिन ये मोस्टली जो है फार्मासिस्ट एक बेहतर काम कर सकता है कि उसको क्या चीज़ की परचेज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, किसकी रनिंग ज़्यादा है मेडिसिन की, किसकी नहीं है, वही ऑर्डर करे, वही परचेज़ करे, तो यही सबसे बेस्ट है। और इसमें जो है करप्शन के भी चांसेस बहुत कम से कम होते हैं। तो फार्मास्यूटिकल सप्लाइज, मेडिकल सप्लाइज और ड्रग्स मेंटेनेंस, स्टॉक और स्टोरिंग एंड हैंडलिंग इट प्रॉपरली, ये फार्मासिस्ट का काम हो गया। और ये अब फार्मास्यूटिकल सप्लाइज एंड सप्लाइज़ का उसमें सिरिंजेस भी आ जाते हैं, ड्रिप्स भी आ जाएंगी, इसमें जो है कैनुला भी आ जाएंगे, और मेडिकल सप्लाइज भी आ जाएंगे, जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, ड्रग्स भी हैं, इंसुलिन से हैं, सारी चीज़ें जो आ जाती हैं। एनालाइज प्रिस्क्राइबिंग ट्रेंड टू मॉनिटर पेशेंट्स compliance and to prevent excess uses और harmful interactions। ये देखिए पेशेंट को मॉनिटर करते रहना है। ज़ाहिर है पेशेंट तो एडमिट है एक वार्ड के अंदर, लेकिन उसके लिए क्या मेडिसिन जा रही हैं, क्या नहीं जा रही, उसकी फ़ाइल को रिव्यू करते रहना है। क्या मेडिसिन इसको डिसकंटिन्यू हो गई, कब ये मेडिसिन इसको स्विच ओवर की गई, एक रिव्यू करते जाएंगे उसको, तो चांसेस जो है जो मिस्टेक के कम से कम होते हैं। तो उसको आप जो है सही तरह आप देखेंगे कि किस तरह हार्मफुल जो है इंट्रैक्शन ना हो, और इसके लिए ज़ाहिर है आपको टच में रहना पड़ेगा और मॉनिटर करते रहना पड़ेगा प्रिस्क्राइबिंग जो है ट्रेंड को, और किस तरह से उसको चेंजेस लाई जा रही हैं वो आपने टेक केयर करना है। जो कि ये काम जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का भी होगा। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, इन दोनों में बेसिक फ़र्क क्या होगा हम अभी आगे बताएंगे आपको। एडवाइस पेशेंट, ये एडवाइस पेशेंट ज़्यादा मैंने बताया अभी इससे पहले कि ओपीडी में ज़्यादातर एडवाइस कर सकते हैं, ज़्यादा चांस होते हैं। इन पेशेंट में चांसेस इसलिए नहीं होते, पेशेंट एडमिट होता है, नर्स के ज़रिए या डॉक्टर्स के ज़रिए उसको हम मेडिकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसलिए इन आउट पेशेंट जो फार्मेसिस्ट है या फिर ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स में कोई कॉल करता है तो उनको एडवाइस पेशेंट को हम देते हैं ऑन द सिलेक्शन ऑफ द मेडिकेशन। उनके ब्रांड बताए जाएंगे, इसके मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, वो हेल्थ केयर सप्लाइज़ के बारे में, या जो कुछ भी मेडिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी डिस्कशन करना चाहें पेशेंट, तो वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहाँ मैंने इस स्लाइड में मैंने हेडिंग दी है कि स्किल ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। स्किल्स यहाँ मेन चीज़ है, वो तो उसकी ड्यूटीज़ वाला तो अभी देखिए आपने क्या थी। एक स्किल जो है कि ज़ाहिर एक आम आदमी है जो कि कोई हॉस्पिटल में कोई भी काम कर रहा है, और चाहे वो डिस्पेंसर है चलो, या क्लीनर का काम कर रहा है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर है, फार्मेसी के अंदर एक फार्मासिस्ट जो है वो काम कर रहा है। तो फार्मासिस्ट में भी एक जो है जिसमें स्किल है, एक इसमें स्किल नहीं है। तो वो क्या क्या स्किल है जो अगर हो तो वो पेशेंट केयर के लिए और हॉस्पिटल के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो वो स्किल के मैंने कुछ स्किल्स इसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा भी आपको स्किल जो है आप बुक से देख सकते हैं, कोई आप शेयर कर सकते हैं। और ये देखें, ये स्लाइड शो है जो आपको कुछ कॉन्सेप्ट फराहम कर रहा है, और आपको मज़ीद उसके लिए अगर आप कोई चीज़ इसमें ऐड करना चाहें और अपने नोट्स बनाना चाहें तो इस लिहाज से अपने नोट्स बना सकते हैं। बुक भी अवेलेबल है, लिटरेचर भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले ये देखिए, मैं वन बाय वन आपको रीड करता हूँ। एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए, किस तरह वो पहचान लेगा, हर चीज़ों को पहचान लेगा, एनालाइज कर लेगा, एनालाइज करेगा। तो ज़रूरी नहीं एनालाइज कोई प्रैक्टिकल एनालिसिस हो, वो एनालाइज जो ड्रग के भी देख के, प्रिस्क्रिप्शन देख के भी कर सकता है कि इसमें क्या गलती है, क्या नहीं गलती है। देख लिया अभी ये गलती है इसमें, अच्छा इसमें तो ये मेडिकेशन गलती है, ये डोज गलती है। इस तरह की इसमें एबिलिटी होनी चाहिए। एंड एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, ये नहीं कि सोच लिया बस हो गया, नहीं, और अपनी ड्यूटी पूरी कर ली 8 घंटे, नहीं, थिंक करना है क्रिटिकली। क्रिटिकली का मतलब ये है उसको इस लिहाज से देखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें इसमें देखिए गलती के चांस हैं कि नहीं है, या कोई गलती निकल सकती है। ज़रूरी नहीं गलतियाँ निकाल, अच्छा चीज़ से सही तरीके से बिला वजह की गलती निकाल, बिला वजह की गलती नहीं, लेकिन जो गलती है उसको तलाश करना है ताकि वो आगे पेशेंट तक ना पहुँचे और पेशेंट को हार्म ना करे। स्ट्रॉन्ग न्यूमेरिकल स्किल, अच्छा न्यूमेरिकल स्किल जो है डोज कैलकुलेशन में इसकी ज़्यादा बहुत अहमियत हासिल है। जिसके न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन अच्छी है वो डोज कैलकुलेशन अच्छी तरह कर सकता है। वो ज़ाहिर है प्रिपरेशन, IV प्रिपरेशन में कैलकुलेट कर सकता है, डोज को कैलकुलेट करेगा कितने मिलीग्राम्स, कितना
माइक्रोग्राम्स क्या कितनी डालनी है, क्या क्या चीज़ डालनी है, और ये सारी कैलकुलेशंस वो ज़ाहिर है ये स्किल है, स्किल बताए ना, ये होंगी तो वो फार्मासिस्ट दूसरे फार्मासिस्ट के मुकाबले में अपने आप को ऊपर कर सकता है, अपने आप को नुमाया कर सकता है। अटेंशन टू डिटेल, यानी वो डिटेल किस तरह अटेंड करेगा, किस तरह जो है उसमें सलाह देती है कि किस तरह उसको किसी चीज़ को रिव्यू कर सकता है, किस चीज़ को रिव्यू करेगा, किस तरह उसको अटेंशन देगा, वो अटेंशन होनी चाहिए उसके अंदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम मेकिंग नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम मेक एक जो प्रॉब्लम मेकिंग तो बिल्कुल ही अलग ही हो गया, वो तो बिल्कुल नुकसान ही पहुंचा रहा है। लेकिन अगर कोई भी नहीं कर रहा, अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है ना स्किल कर रहा है, तो वो चलो, लेकिन वो स्किल तो नहीं हुई, वो फार्मासिस्ट का स्किल के लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। और ऑब्जर्वेशन स्किल भी होनी चाहिए इसमें, कि ऑब्जर्व करे हर चीज़ को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल होनी चाहिए, ज़ाहिर है फार्मेसी का काम कॉन्टैक्ट जो है कम्युनिकेट है डॉक्टर्स के साथ, पेशेंट्स के साथ, नर्सेज के साथ, एक्सरे डिपार्टमेंट के साथ, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के साथ, रिसेप्शन के साथ, और अभी हम जब आगे देखेंगे कि ज़ाहिर है और भी HR डिपार्टमेंट है उसके साथ क्या होगा, रिसेप्शनिस्ट के साथ हो रहा है, तो इवन जो गेट पे खड़े हुए चौकीदार है, सिक्योरिटी वाले, कम्युनिकेशन उसके साथ भी है। लेकिन वो सोशल स्किल जब भी बोला है मैंने, कम्युनिकेशन सोशल स्किल, वो टीच करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या वो मेडिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। देखिए इस स्लाइड में मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, जैसे एक्चुअली दो चीज़ें अभी जिक्र जैसे मैं कर ही रहा था कि क्लिनिकल फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। तो क्लिनिकल फार्मेसी हो तो जो क्लिनिकल फार्मेसी में के लिहाज से जो काम कर रहा होगा फार्मासिस्ट, वो कहलाता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट, और हॉस्पिटल में के लिहाज से, हॉस्पिटल फार्मेसी लिहाज से हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। देखिए हॉस्पिटल फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी में थोड़ा सा फ़र्क है। तो थोड़ा फ़र्क क्या से मुराद है कि ज़ाहिर हॉस्पिटल के अंदर जो काम कर रहे होंगे वो तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहलाएगा। वो इन पेशेंट जैसे बताया, इन पेशेंट भी हो सकता है, आउट पेशेंट भी हो सकता है, और इंक्लूडिंग जैसे बताया ड्रग थेरेपी में के साथ जो कि हम जो है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और फार्मेसी को अच्छी तरह रनिंग करते हैं, इन पेशेंट को अच्छी तरह रनिंग करते हैं, आउट पेशेंट रनिंग करते हैं, कंपाउंडिंग की एरिया भी चल रहा है, IV का एरिया चल रहा है, हॉस्पिटल के सारे काम जो करें हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कराएगा। तो फिर क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या, क्लिनिकल फार्मासिस्ट देखिए हॉस्पिटल का एक हिस्सा है, लेकिन क्लिनिकल फार्मासिस्ट में स्पेशली जो है हेल्थ केयर डिसिप्लिन को नुमाया रखा गया है, जिसमें फार्मासिस्ट जो है डायरेक्ट जो है हेल्थ केयर में हिस्सा ले रहा है, यानी कि ये रूटीन की जॉब सिर्फ नहीं कर रहा, सिर्फ रूटीन की जो डिस्पेंसिंग है या कंपाउंडिंग है या फिर ये, उसमें क्या है फार्मासिस्ट जो है चैलेंजिंग को ले रहा है। उसमें अगर पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट हो जाता है तो उस साइड इफ़ेक्ट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, मेडिकेशन को चेंज करने के में एडवाइस दे रहा है, अपने राउंड कर रहा है इन पेशेंट के साथ, इन पेशेंट में डॉक्टर्स के साथ डोजेज को चेंज करने का हो रहा है, वहाँ पे हिस्सा ले रहा है। कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाता है किसी चीज़ का, उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है कि साइड इफ़ेक्ट क्यों हुआ, या एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगा एडवर्स ड्रग इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। वैसे तो आप ये क्लिनिकल फार्मेसी में फॉर्म 603 में ये डिटेल पढ़ेंगे। लास्ट टाइम मैंने कोर्स 603 लिया था क्लिनिकल फार्मेसी, तो इस दफ़ा मैं हॉस्पिटल फार्मेसी ले रहा हूँ। तो क्लिनिकल फार्मेसी में भी आप ऐसे डिटेल में ये पढ़ेंगे, जो भी टीचर होंगे आपको पढ़ाएंगे कि क्या होता है ये, यानी हम तो सिर्फ हॉस्पिटल फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको देख रहे हैं ना, लेकिन क्लिनिकल फार्मेसी का एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा हेल्थ केयर को, पेशेंट की हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए, और उसके एडवर्स ड्रग रिएक्शंस और साइड इफ़ेक्ट्स और मैनी अदर थिंग्स जो है उसको किस तरह सॉल्व करेंगे उनकी प्रॉब्लम्स को, वो क्लिनिकल फार्मेसी में आ जाएगा। और ये क्लिनिकल फार्मेसिस्ट करता है। क्लिनिकल फार्मेसिस्ट एक हॉस्पिटल का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसकी ड्यूटीज़ में रूटीन वाले हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट ज़रा हट कर होती हैं। और अब ये देखिए, वैसे तो ज़ाहिर हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट भी वो कहलाएगा, क्लिनिकल फार्मेसिस्ट एक हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट भी होता है, लेकिन हर हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट क्लिनिकल फार्मेसिस्ट नहीं होता, ये याद रखें। हर क्लिनिकल फार्मेसिस्ट हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट भी होता है, इसलिए कि हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन हर हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट क्लिनिकल फार्मेसिस्ट नहीं होता, इसलिए कि वो अगर कोई इन पेशेंट में कोई काम कर रहा है या एक आउट पेशेंट में काम कर रहा है, वो आउट पेशेंट काम कर रहा है,
वो एज अ क्लिनिकली फार्मासिस्ट के तौर पे इधर उधर जाके ज़ाहिर उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता, टाइमिंग के लिहाज से भी सबकी ड्यूटीज़ को डिवाइड किया जाता है, इतना टाइम भी नहीं होता कि वो उसको एडजस्ट कर सके। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो है वो इस तरह अपना हेल्थ केयर सिस्टम में ज़रा अपना पार्ट इंट्रैक्शन जो है उसके पेशेंट के साथ और हेल्थ केयर प्रोफेशन के साथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हॉस्पिटल फार्मासिस्ट।